یہ رہا آپ کے لیے الفاظ کے انداز کے مطابق ایک مفصل اردو مضمون بعنوان سچے تاجر کی مثال۔ مضمون تب انداز اور زبان آپ کی درخواست کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ مقدمہ کاروبار اور تجارت انسان کی اجتماعی زندگی کا وہ شعبہ ہے جنہوں نے معاشرتی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ تجارت نہ صرف مال و دولت کا لین دین ہے بلکہ اعتماد، اخلاق، عدل و انصاف اور امانت کا سلسلہ بھی ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی معاشرہ خوشحال اور مستحکم رہا تو اس کی بنیاد میں دیانت و سچائی نے کلیدی مقام رکھا۔ اس مضمون میں ہم سچے تاجر کی خصوصیات، اس کی روزمرہ زندگی کے عملی نمونے، اخلاقی و دینی نقطۂ نظر اور ایسے تاجر کے معاشرتی و معاشی فوائد کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ایک عملی مثال کے ذریعے یہ دکھائیں گے سچائی کس طرح طویل مدتی کامیابی اور عزت کا سبب بنتی ہے۔ سچے تاجر کی تعریف: سچا تاجر وہ ہے جو اپنے کاروبار میں سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ وہ گاہک کو صحیح مال دیتا، وزن ناپ تول میں درستگی رکھتا، قیمت میں شفافیت ہوتی ہے، معاہدوں کی پابندی کرتا اور سود دھوکے بازی سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سچا تاجر اپنے ملازمین اور سپلائرز کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے، محنت میں انصاف برتتا ہے اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسی اصول کو اپناتا ہے جو اپنے کاروبار میں نافذ کرتا ہے۔ سچائی اس کے لیے محض اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ایک حکمت عملی بھی ہے جو اعتماد، برنینڈ اور درپائی پیدا کرتی ہے۔ سچی تاجر کی خصوصیات: ایک، ایمانداری اور امانت۔ سچے تاجر کی پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت امانت کی۔ وہ گاہک سے رقم لے کر مناسب مال دیتا، مبالغہ آرائی نہیں کرتا اور واپسی کی پالیسی واضح رکھتا ہے۔ امانت صرف پیسے کا معاملہ نہیں بلکہ وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری بھی ہے۔ دو، شفافیت اور وضاحت۔ قیمت، معیار، واپسی اور گارنٹی کی شرائط واضح ہوتی ہیں۔ جب خریدار کو ہر شے کا ٹھیک علم ہو تو اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ شفافیت، مصنوعات کی تفصیل، تاخیر، پیداوار اور کسی ممکنہ خرابی کے متعلق معلومات فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ تین، عدل و انصاف۔ ملازمین کے ساتھ عدل، گاہکوں کے ساتھ انصاف اور مقابل حریفوں کے ساتھ شرافت، یہ سب سچے تاجر کی نشانیاں۔ آؤ، قیمت مقرر کرتے وقت منصفانہ ہوتے ہیں اور مصنوع کی قیمت بڑھانے کے لیے جبر غلط بیانی استعمال نہیں کرتے۔ چار، صبر اور بردباری۔ تجارت میں اچھا منافع ہر وقت حاصل نہیں ہوتا۔ سچا تاجر مشکلات میں صبر کرتا، صبر کے ساتھ معقول فیصلے کرتا اور وقتی نقصان کو مستقل مفاد کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ پانچ، عزت نفس اور شرافت۔ شرافت اس میں ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی فریب کاریوں سے رہتا ہے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی توہین کا استحصال نہیں کرتا۔ عزت نفس اسے ایسی حدود پر کھڑا رکھتی ہے جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے سے بالاتر ہوں۔ 6، معاشرتی ذمہ داری۔ سچا تاجر اپنے منافع کا کچھ حصہ خیرات، سماجی کام اور کمیونٹی کی ترقی میں خرچ کرتا ہے۔ اس سے اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور کاروبار کو مقامی پذیرائی ملتی ہے۔ سچے تاجر کے عملی نمونے، روزمرہ مناظر۔ ایک، وزن تول کا معاملہ۔ فرض کریں ایک دکاندار آلو اور چاول بیچ رہا ہے۔ سچا تاجر تول کر صحیح وزن دیتا ہے۔ اگر ترازو میں معمولی خرابی ہو تو وہ گاہک کو بتا کر ترازو درست کرواتا اور خود از خود وزن کم کرتا، دکھا دے کر اعتماد قائم کرتا ہے۔ یہ چھوٹی مثالیں طویل مدت میں بھاری اثر ڈالتی ہیں۔ گاہک بار بار اسی دکان پر آتا ہے اور دوسری جگہوں کے مقابلے میں رقم کم ریٹ میں بھی وہی دکان منتخب کرتا ہے۔ دو، معاہدہ کی پاسداری۔ جب ایک سپلائر خریدار کے ساتھ تحریری اور زبانی معاہدہ ہوتا ہے تو سچا تاجر اس کی پاسداری کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے معاہدہ پورا نہ ہو پائے تو وہ وقت پر اطلاع دیتا، معقول متبادل تجویز کرتا اور معاوضے کا بندوبست کرتا۔ اس سے کاروباری پارٹنرشپ مستحکم رہتی ہے۔ تین، کریڈٹ اور قرض کا نظم۔ ایک معتبر تاجر اپنے کریڈٹ ریکارڈ کو شفاف رکھتا ہے۔ اگر کسی گاہک نے ادھار لیا ہے تو اسے یاد دہانی اور شائستہ طریقے سے پیسے واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر ضرورت میں مدد بھی فراہم کرتا ہے اور ظلم اور گھوس سے بچتا ہے۔ چار، پروڈکٹ کا معیار۔ سچا تاجر پروڈکٹ کے معیار میں کمی کر کے منافع جلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کسی بیچی گئی چیز میں خامی آتی ہے تو وہ مرمت، تبدیلی اور رقم واپسی کا بندوبست کرتا ہے۔ گاہک کا اعتبار برقرار رہتا ہے۔ مثال، حلیم کا قصہ۔ حلیم ایک متوسط درجے کا تاجر تھا جس نے شہر کے ایک کونے میں چھوٹی دکان سے کاروبار شروع کیا۔ ابتدا میں وہ محدود سرمایہ اور محدود صارفین کے ساتھ تھا۔ ایک دن ایک گاہک نے شکایت کی کہ دال میں کچھ خراب تھی۔ حلیم نے فوراً معذرت کی، دال واپس لے لی اور نئے مال کے ساتھ رقم واپس کر دی۔
اس نے گاہک سے پوچھا کہ کیا وہ آئندہ بھی اسی دکان پر آئے گا؟ گاہک نے کہا، میں واقعی نہیں جانتا، مگر تم نے آج جو طریقہ اختیار کیا وہ مجھے پسند آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی گاہک اپنے پڑوسیوں کو حلیم کی دکان بتانے لگا۔ نوبت یہ ہوئی کہ جلد ہی اس دکان کی ساکھ بڑھ گئی اور کاروبار پھیلتا گیا۔ حلیم نے اپنے منافع کا ایک حصہ ملازمین کی تنخواہوں میں مستقل بڑھوتری اور مقامی مدرسے کی امداد میں دیا۔ اس طرح اس کی دکان ایک معاشرتی مرکز بن گئی جہاں لوگ انصاف، شفافیت اور انسانیت دیکھتے۔ حلیم نے دکھایا کہ سچائی اور امانت کاروبار میں وقتی نقصان کا سبب تو بن سکتی ہے، مگر طویل مدت میں یہی راستہ سلامتی، احترام اور مستقل کامیابی دیتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر اور سچائی کی اہمیت۔ اسلام میں تجارت کو جائز اور مبارک سمجھا گیا ہے، بشرطے کہ وہ عدل، امانت اور شفافیت کے ساتھ کی جائے۔ روایات و تاریخ اسلام میں ایسے کئی لوگوں کے نام ملتے ہیں جنہیں سچائی اور دیانت کی وجہ سے عظمت ملی۔ سچا تاجر نہ صرف دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے بلکہ اس کی روحانی فلاح کا راستہ بھی ہموار ہوتا ہے۔ کاروبار میں دھوکہ و فریب نہ صرف معاشرتی قباحت ہے بلکہ دینی لحاظ سے بھی ناپسندیدہ عمل شمار ہوتا ہے۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ تجارت میں ایمانداری عمل ایمان کا حصہ ہے۔ سچائی کے معاشی فوائد: برقرار رہنے والا اعتماد، کاسٹمر لائلٹی۔ جب گاہک جانتے ہیں کہ انہیں صحیح مال، صحیح وزن اور بروقت سروس ملے گی تو وہ بار بار آتے ہیں۔ وفادار گاہک نئے گاہکوں کو بھی لاتے ہیں اور زبانی تعریف سب سے بڑا اشتہار ہوتی ہے۔ دو، کم قانونی مخاصمت، معاہدوں، گارنٹیوں اور معیار میں شفافیت ہونے سے جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ یہ وقت اور پیسے دونوں بچاتا ہے۔ 3، قیمتوں پر پائیداری۔ سچا تاجر عموماً قیمتوں میں غیر ضروری اتار چڑھاؤ نہیں کرتا کیونکہ اس کی شبیہ مضبوط ہوتی ہے۔ شفاف قیمتوں سے مارکیٹ میں استحکام آتا ہے اور طویل مدتی لین دین ممکن ہوتا ہے۔ 4، بہتر سپلائی چین اور پارٹنرشپ۔ سپلائرز اور بانڈڈ پارٹنرز سچے تاجروں پر بھروسہ کرتے آوا۔ قابل بھروسہ تعلقات آپ کو بہتر ادائیگی شرائط، ترجیحی سپلائی اور مشترکہ ترقی کے مواقع دیتے ہیں۔ سچائی کے نفسیاتی اور سماجی فوائد: سچے تاجر کی داخلی زندگی بھی پرسکون ہوتی ہے۔ اسے گاہکوں، ملازمین اور خاندان کے سامنے سر اٹھا کر رہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سماجی طور پر اس کی عزت بڑھتی ہی۔ نوجوان تاجر اس کی مثال اپناتے ہیں اور معاشرہ ایک مضبوط اخلاقی سٹرکچر قائم کرتا ہے۔ یہ اخلاقی کلچر کرپشن، دھوکہ اور بے ایمانی کے خلاف قدرتی روک کا کام کرتا ہے۔ چیلنجز جو سچے تاجر کو درپیش ہوتے ہیں کہ مقابلے میں کمزور محسوس ہونا۔ جب بازار میں کچھ تاجروں کی طرف سے دھوکہ کم معیار کے ذریعے فوری منافع ملے تو سچے تاجر کو وقتی طور پر نقصان رفتار میں کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ 2، قلیل المدتی منافع کی قربانی۔ ایمانداری بعض اوقات فوری مالی فائدے کو محدود کر دیتی ہے مگر یہ انویسٹمنٹ کی طرح ہے، لمبی مدت میں ریٹرن ملتا ہے۔ 3، بعض اوقات غلط فہمیاں۔ بعض اوقات گاہک سپلائر سچے تاجر کے مقصد کو نہ سمجھی اور اس کی شفاف پالیسی کو کمزور سمجھی، مگر مستقل کارکردگی اس کو بدل دیتی ہے۔ سچے تاجر کے لیے عملی مشورے: 1، معاہدات تحریری رکھیں۔ اہم معاملات پر تحریری معاہدے اعتماد اور شفافیت بڑھاتے ہیں۔ 2، معیار کنٹرول سسٹم مرتب کریں۔ پروڈکٹ کی جانچ، اسٹاک کی مینجمنٹ اور واپسی کے پروسیس واضح رکھیں۔ 3، گاہک سے کھلے رابطے رکھیں، فیڈ بیک لیں اور اصلاح کریں۔ 4، ملازمین کی تربیت کریں۔ ایمانداری کا پیغام صرف مالک تک محدود نہ رکھیں، ملازمین کو بھی اصول سکے۔ شبہ اور شکایات کا فوری حل مسئلے کو لچھے میں ڈالنے سے بہتر ہے، فوری تسلی بخش حل پیش کریں۔ 6، قیمتوں میں شفافیت، کسی بھی خصوصیت چھپی ہوئی فیس سے گریز کریں۔ 7، سماجی فلاح میں حصہ لے، یہ صرف خیرات نہیں بلکہ برانڈ اور ساکھ کی سرمایہ کاری ہے۔ نتیجہ: سچا تاجر صرف ایک اخلاقی آئیڈیل نہیں بلکہ ایک عملی ضرورت بھی ہے۔ معاشی ترقی اور سماجی فلاح دونوں کے لیے ایماندار اور شفاف کاروباری اخلاق نہایت ضروری ہیں۔ سچائی کا راستہ وقتی مشکلات دے سکتا ہے مگر آخر کار یہی راستہ انسان کو عزت، اعتماد اور دیرپا فائدہ دیتا ہے۔ کہانیوں اور عملی تجربات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ تاجروں نے جو امانت اور انصاف کو اولویت دی، نہ صرف ان کے کاروبار پھلے بلکہ ان کے نام بطور اعتماد رکھے گئے۔ ہمیں بطور معاشرہ ایسے تاجروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہیے کہ کامیابی کا مطلب صرف رقم نہیں بلکہ عزت، خدمت اور ایسا ورثہ ہے آئندہ نسلوں کے لیے مشرہ بنے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ سچی تجارت ایک ایسی شے ہے جو بیچی نہیں جا سکتی۔
मगर अपनाई जा सकती है और अपनाने वालों का अजर हमेशा बाकी रहता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून को किसी मखसूस लहजे मसलन मदरसा तहकीकी अदबी खुतबे के अंदाज में दोबारा लिख दूँ सीन को एक मुख्तसर तकरीर या समाजी पोस्ट के मुताबिक मुख्तसर कर दूँ। सच्चे ताजिर की मिसाल मुकदमा तिजारत इंसान की जिंदगी का वो शोबा है जो मईशत को हरकत देता है, रोजगार पैदा करता है और मुआशरे की ज़रूरियात को पूरा करता है। मगर तिजारत सिर्फ नहीं, तिजारत का लेन देन नहीं बल्कि इसके साथ अखलाक, ईमान और अमानत भी जाड़ होती है। एक सच्चा ताजिर वो है जो न सिर्फ अपने मुनाफा के बारे में सोचता है बल्कि अपने गाहक, मजदूर और मुआशरा के साथ दियानतदारी और इंसाफ से पेश आता है। इस मजमून में हम सच्चे ताजिर की सिफात, उनके मुआशरती असरात, एक वाज़े मिसाल और अमली रहनुमा उसूल बयान करेंगे। सच्चे ताजिर की तारीफ। सच्चा ताजिर वो शख्स है जो तिजारती उमूर में सच बोलता है, वज़न और पैमाना दुरुस्त रखता है, मियाद और मेयार की पासदारी करता है और गाहक के हक में फैसला करने से नहीं कतराता। सच्चा ताजिर सिर्फ कमाई के पीछे नहीं भागता बल्कि अपने काम को इबादत समझ कर करता है। वो रिश्वत, धोखा और नाजायज़ चालों से दूर रहता है। सच्चे ताजिर की बुनियादी सिफात एक अमानत और दियानत। सच्चा ताजिर अपने माल और दौलत को अमानत समझता है, खरीद और फरोख्त में ठीक हिसाब रखता, वापस शदा अशिया नाकिस चीज़ के लिए जिम्मेदारी कबूल करता है। 2. काबिल एतमाद रहना। वदा खिलाफी से बचता है, जो कुछ वदा करे इसे पूरा करता है चाहे इसमें इसे कम फायदा हो। 3. शफाफियत। कीमत, खुसूसियात, मिकदार और मेयार के बारे में वाज़े रहता है, जब का मुबालगा आराई से गाहक को नहीं बालाता। 4. इंसाफ पसंदी। कस्टमर और सप्लायर के साथ इंसाफ से पेश आता है, कीमत मुकर्रर करते वक्त मुनाफा के साथ साथ इंसाफ को भी मद्देनजर रखता है। 5. सब्र और तहम्मुल। कारोबारी मुश्किलात में हिम्मत नहीं हारता और बगैर धोखे के मुश्किलात का मुकाबला करता है। 6. खुदा का खौफ। अपने अमाल में अल्लाह का खौफ रहता है, इसलिए नाजायज़ तरीक़े अपनाने से गुरेज करता है। 7. मुआशरती जिम्मेदारी। गरीबों, मुलाजिमीन और महल्ले वालों के साथ खुश इखलाकी और हमदर्दी से पेश आता है। सच्चे ताजिर के मुआशरती और इक्तिसादी फ़वाइद। सच्चे ताजिरों की मौजूदगी मुआशरे में एतमाद पैदा करती है। जब गाहक जानते हैं कि ताजिर बहार दौर में ईमानदारी से पेश आएगा तो तिजारत में गर्दिश बढ़ती है। मार्केट शफाफ बनती है और तिजारती कवानीन की मजबूती होती है। इसके अलावा माशी इस्तेहकाम। सच्चे ताजिर दूर दराज तक कारोबार चिल्लाते हैं, जिससे मुस्तकिल रोजगार मिलता है, मुआशरत, भरोसा। लोग एक दूसरे पर एतमाद करने लगते हैं, कर्ज व ज़राए आसानी से दस्तयाब होते हैं। इखलाकी मिसाल नए ताजिरों और नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई बनती है। हाजी करीम एक सच्चे ताजिर की जिंदा मिसाल। ये कहानी फर्जी मगर इबरत आमेज है। गांव के एक छोटे बाजार में हाजी करीम के नाम से एक दुकान थी। वो मसाला, चाय और रोजमर्रा अशिया बेचता था। हाजी करीम हर वक्त मुस्कुराता रहता मगर सबसे ज्यादा मशहूर उसकी ईमानदारी थे। एक दिन एक लड़का अपनी माँ के लिए एक महंगी दवा खरीदना आया। दवा खरीदते हुए दुकान में एक जोसक पसंदीदा बोतल भी रह गई। ते लड़की ने बोतल को देखकर जी चाहा मगर पैसे कम थे। हाजी करीम ने न सिर्फ दवा के लिए सही कीमत ली बल्कि लड़के को छोटी सी रियायत देकर एक पाम ऑफ चीनी वाली छोटी मिठाई भी दी ताकि बच्चा खुश हो जाए। और वाकया एक दूर दराज शहर से ताजिर ने हाजी करीम को एक बड़ी मिकदार में खुश्क मेवा सप्लाई करनी थी। शिपिंग के दौरान कुछ मिकदार खराब हो गई। हाजी करीम ने खुद नुकसान उठाया, सप्लायर को पूरा मुआवजा अदा किया और ग्राहकों को साफ चीजें फराहम की। इसने मामला छुपाए बगैर खुला करके गांव वालों को बताया कि किसी एक बिल्डे की वजह से कुछ मिकदार खराब हुई थी और वो नुकसान खुद बर्दाश्त कर लेगा। इस वाकई ने इसके कारोबार को नुकसान तो पहुंचाया मगर ग्राहकों का एतमाद दुगना हो गया। इस मिसाल से सीखे जाने वाले निकात ईमानदारी देरपा मुफाद देती है। आर्जी नफा के बदले में झूठ बोलना, अमेयार कम करना मुख्तसर मुद्दत में फ़ायदा दे सकता है मगर देरपा नुकसान ज़रूर होगा। साख का फ़ायदा। हाजी करीम की मिसाल बताती है कि साख बहुत ताकतवर असासा है। एक मर्तबा साख बरकरार हो जाए तो लोग मील जौल बढ़ा देते हैं और कारोबार को सपोर्ट करते हैं। मुआशरती ताल्लुकात, दियानतदारी इंसानी ताल्लुकात को मजबूत करती है। लोग ऐसी दुकानों को अपनाते हैं जिन पर एतमाद कर सकते हैं। सच्चे ताजिर के सामने आने वाले इखलाकी चैलेंजेस। तिजारत में बहुत से ऐसे हालात
आते हैं जहां सच बोलना मुश्किल होता है या फायदा छिन जाता है, उनमें शामिल हैं मुनाफा के लिए फरेब, कम कीमत में ज्यादा नफा कमाने के लिए मिकदार अमेयार में छेड़ मुसाबकत दबाव। बाजार में सख्त मुकाबला हो तो बाज़ औकात सच्चे ताजिर को गैर इखलाकी तरीके अपनाने की तरगीब मिलती है। माली मुश्किल, कर्ज, टैक्स, लागत में इजाफा सच्चाई पर कारबंद रहना मुश्किल बना सकता है। उन चैलेंजेस का हल ईमान, सब्र और हिकमत अमली में मुज़मर जिम्मेदारी से काम करने, अखराजात का दुरुस्त हिसाब रखने, मुमकिना नुकसानात और नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई बनती है। हाजी करीम एक सच्चे ताजिर की जिंदा मिसाल। ये कहानी फर्जी मगर इबरत आमेज है। गांव के एक छोटे बाजार में हाजी करीम ने न सिर्फ दवा के लिए सही कीमत ली बल्कि लड़के को छोटी सी रियायत देकर एक पाम ऑफ चीनी वाली छोटी मिठाई भी दी ताकि बच्चा खुश हो जाए। और वाकया एक दूर दराज शहर से ताजिर ने हाजी करीम को एक बड़ी मिकदार में खुश्क मेवा सप्लाई करनी थी। शिपिंग के दौरान कुछ मिकदार खराब हो गई। हाजी करीम ने खुद नुकसान उठाया, सप्लायर को पूरा मुआवजा अदा किया और ग्राहकों को साफ चीजें फराहम की। इसने मामला छुपाए बगैर खुला करके गांव वालों को बताया कि किसी एक बिल्डे की वजह से कुछ मिकदार खराब हुई थी और वो नुकसान खुद बर्दाश्त कर लेगा। इस वाकई ने इसके कारोबार को नुकसान तो पहुंचाया मगर ग्राहकों का एतमाद दुगना हो गया। इस मिसाल से सीखे जाने वाले निकात, ईमानदारी देरपा मुफाद देती है। आर्जी नफा के बदले में झूठ बोलना, अमेयार कम करना मुख्तसर मुद्दत में फायदा दे सकता है मगर देरपा नुकसान जरूर होगा। साख का फायदा। हाजी करीम की मिसाल बताती है कि साख बहुत ताकतवर असासा है। एक मर्तबा साख बरकरार हो जाए तो लोग मील जौल बढ़ा देते हैं और कारोबार को सपोर्ट करते हैं। मुआशरती ताल्लुकात, दियानतदारी इंसानी ताल्लुकात को मजबूत करती है। लोग ऐसी दुकानों को अपनाते हैं जिन पर एतमाद कर सकते हैं। सच्चे ताजिर के सामने आने वाले इखलाकी चैलेंजेस। तिजारत में बहुत से ऐसे हालात आते हैं जहां सच बोलना मुश्किल होता है या फायदा छिन जाता है। उनमें शामिल हैं मुनाफा के लिए फरेब, कम कीमत में ज्यादा नफा कमाने के लिए मिकदार अमेयार में छेड़ मुसाबकत दबाव। बाजार में सख्त मुकाबला हो तो बाज़ औकात सच्चे ताजिर को गैर इखलाकी तरीके अपनाने की तरगीब मिलती है। माली मुश्किलात, कर्ज, टैक्स, लागत में इजाफा सच्चाई पर कारबंद रहना मुश्किल बना सकता है। उन चैलेंजेस का हल ईमान, सब्र और हिकमत अमली में मुज़मर जिम्मेदारी से काम करने, अखराजात का दुरुस्त हिसाब रखने और मुमकिना नुकसानात के लिए बचत करने से दियानतदारी बरकरार रखी जा सकती है। अमली तजावीज़ सच्चे ताजिर बनने के ज़राए, साफ हिसाब किताब, रसीदें, वज़न के नोटिस और मुआहदात तहरीरी सूरत में रख दो। मेयार की मजबूती, सप्लायर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं और मेयार की जांच के लिए मामूली चेक रखें। 3. शफाफ मार्केटिंग, मसनूआत की खुसूसियात में मुबालगा से ग्रेज करें। 4. मुलाजिमीन के साथ अदल, वक्त पर उजरत दें और उनके मसाइल सुनें। 5. गाहक से गुफ्तगू, शिकायत को तरजीह दें और मसले को हल करने में फौरी कार्रवाई करें। 6. मुआशरती ताउन, लोकल कम्युनिटी में मदद करें। सस्ती अक़साम और रियायती दिन रखें। 7. दीनी और इखलाकी तरबियत, अपने दिल को मजबूत रखने के लिए दीनी/इखलाकी तालीमात पर अमल कर। सच्ची ताजिर की माशी हिकमत अमली। सच्चा ताजिर सिर्फ इखलाकी पहलू पर अमल नहीं करता बल्कि वो मालियाती मंसूबाबंदी भी बेहतर अंदाज में करता है। मिसाल के तौर पर हिकमत अमली बराए कीमत गुजारी, कीमतें मुकर्रर करते वक्त मार्केट लागत और मुनासिब मुनाफा सबको सामने रखता। हिर्सक मैनेजमेंट, मुमकिना नुकसानात के लिए इंश्योरेंस बचत रखता। ही तनवो, सिर्फ एक मसनू पर इन्हिसार न करे बल्कि प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाए। इन तदाबीर से वो न सिर्फ ईमानदार रहेगा बल्कि कारोबारी एतबार से भी मजबूत होगा। मज़हब और इखलाकी हवाला, इस्लामी तालीमात कारोबार और तिजारत में ईमानदारी, सच्चाई और अमानत को बहुत अहमियत देती है। नबी करीम का तर्ज़ तिजारत लोगों के लिए बेहतरीन सबक है क्योंकि वो तिजारत में सच्चाई और एतबार के बाइस वो अल अमीन कहलाए। इसी अखलाक को इख्तियार करके ताजिर न सिर्फ दुनिया में इज्जत पाते हैं बल्कि आखिरत में भी उनके अमाल का सबूत बनता है। सच्ची ताजिर के खिलाफ रवायात और गलत फहमियां कई बार लोग समझते हैं कि सच्चे ताजिर कम मुनाफा लेता है या बाजार में पीछे रह जाता। हकीकत यह है कि सच्चाई और मुनाफा दोनों साथ चल सकते हैं बशर्ते कि हिकमत अमली हो। शफाफियत अक्सर तवील मुद्दती कस्टमर लाइफ
और बढ़ी हुई फरोख्त में बदल जाती है। नौजवान ताजिरों के लिए मशवरे: एक छोटा शुरू करें मगर ईमानदारी से। इब्तिदा में कम सरमाया से शफाफ तरीके अपनाएं तो तालीम हासिल करें। अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग के उसूल सीखें। 3 नेटवर्क बनाएं। ऐसे ताजिरों के साथ ताल्लुक़ रखें जिनकी साथ अच्छी हो। 4 खुद एहतिसाब। अपने सौदे और फैसलों का बाकायदगी से जायजा लें। खात्मा: सच्चे ताजिर की मिसाल हमें ये सिखाती है कि तिजारत सिर्फ रकम का खेल न है बल्कि एक इखलाकी जिम्मेदारी भी है। हाजी करीम जैसी मिसालें बताती हैं कि ईमानदारी और इंसाफ तवील मुद्दत में बेहतर नताइज देती हैं, चाहे वक्ती तौर पर नुकसान क्यों ना हो। एक सच्चा ताजिर मुआशरे का सरमाया होता है। वो भरोसा, अमन और खुशहाली की बुनियाद रखता है। असली बात यह है कि हर ताजिर अगर अपने कारोबार को महज कमाई का जरिया न समझकर एक जिम्मेदारी और इबादत समझ ले तो न सिर्फ इसका कारोबार कामयाब होगा बल्कि मुआशरा भी खुशहाल होगा। अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून को अल्फाज की मखसूस गिनती के साथ फाइन ट्यून करके लफ्ज़ बा लफ्ज़ अल्फाज में शुमार करके फराहम कर दूँ। इसे एक खूबसूरत PDF/document फाइल में फॉर्मेट करके दूँ। बता दीजिए आप कौन सा वर्जन पसंद करेंगे। सच्चे ताजिर की मिसाल: कलीदी अल्फाज। ईमानदारी, दियानत, कारोबारी अखलाक, भरोसा, अदल, शफाफ तिजारत। मुकदमा तिजारत इंसानियत की कदीम सरगर्मियों में से है। चाहे वो छोटा सा हुनरमंद हो या बड़ा ताजिर, तिजारत में मुआशरे तश्कील, सकाफती तबादला और इक्तिसादी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया। हिंगर तिजारत की बुनियाद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि ज़ाबित अखलाक, सच्चाई और भरोसे पर भी कायम रहती है। एक सच्चा ताजिर वो होता है जो मुनाफा के हुसूल के साथ साथ अपने खरीदार, मुलाजमीन और मुआशरे के हुकूक का भी एहतराम करता है। इस मजमून में हम सच्चे ताजिर के अखलाक, मजहबी और अमली पहलुओं को तफसील से बयान करेंगे और एक मिसाल के जरिए दिखाएंगे कि हकीकी दियानतदारी किस तरह कारोबार और समाज दोनों के लिए बाइस बरकत बन सकती है। तारुफ: तिजारत और अखलाकियात। तिजारत और अखलाकियात का रिश्ता सदियों से कायम है। तारीखी तौर पर तिजारतकारों को न सिर्फ माल और दौलत का जिम्मेदार बल्कि मुआशरती उसूलों के मुहाफिज समझा गया है। जहाँ तिजारत में शफाफियत, वादों की पाबंदी और अदल मौजूद होता है, वहाँ मुआशरा तरक्की करता है। एक सच्चा ताजिर उन्हीं उसूलों की रोशनी में कारोबार करता है। सच्ची ताजिर की खुसूसियात: सच्चा ताजिर चंद वाज़ेह खुसूसियात रखता है। एक, ईमानदारी और शफाफियत। मसनूआत और खिदमात के बारे में मुकम्मल हक़ाइक़ बताता है। मावार वज़न, कीमत और गारंटी के मामलात में कोई छपी हुई बात नहीं होती। 2, वदा खिलाफी से ग्रेज़। जब वदा करे तो ज़रूरी होता है कि वो पूरा करे। अगर कोई गैर मुतवक्के वजह आ जाए तो खरीदार को फ़ौरन आगाह करता है और मुतबादिल पेश करता है। 3, मुनसिफाना कीमत। मुनाफा इसका मकसद ज़रूर होता है मगर कीमत इसी कदर होती है जो मेहनत, मेयार और मार्केट के एतबार से मुनासिब हो। 4, ग्राहकों के हुकूक का एहतराम। फरोख्त के बाद भी सर्विस, रिफंड या मुरम्मत में आसानियाँ फराहम करता है। 5, कानून और ज़वाबित की पाबंदी। कारोबारी कवानीन, लाइसेंसिंग, टैक्स और मावान तिजारत के उसूलों का लिहाज रखता है। 6, समाजी जिम्मेदारी। अपने अमल से मुआशरे पर मुस्बत असर डालने की कोशिश करता है, मुलाजमतें देता है, माहौल का ख्याल रखता है और कम्युनिटी में हिस्सा डालता है। मज़हब व इखलाकी हवाला: इस्लाम और दीगर बड़ी मज़ाहिब ने तिजारत में ईमानदारी और इंसाफ पर जोर दिया है। इस्लामी तालीमात में सूद से पाक तिजारत, विकियालाना तर्ज अमल और झूठ से ग्रेस को अहम करार दिया गया है। एक सच्चा ताजिर न सिर्फ दुनियावी एतबार से कामयाब होता है बल्कि सीन का कारोबार इखलाकी और रूहानी लिहाज से भी तस्कीन बख्श होता है। मिसाली कहानी: सैयद हसन एक सच्चे ताजिर की मिसाल। हम फर्जी मगर हकीकत पसंदाना मिसाल: सैयद हसन के तवस्सुत से सच्चे ताजिर की तस्वीर खींचते हैं। सैयद हसन एक छोटे शहर के ताजिर हैं जिनका कारोबार खाना पकाने के बर्तन बनाने का है। उनके वालिद ने उन्हें छोटे से कारखाने की चाबी दी और कहा था, दियानतदारी रखते हो तो कारोबार खुद ब खुद बढ़ेगा। शुरू में सैयद हसन ने भी मेहनत से काम किया, मेयार बेहतर बनाया, मजदूरों के साथ अच्छा सलूक किया और हर गाहक के साथ नरमी से पेश आया। एक दिन एक तेज तूफान में कारखाना जिज़वी तौर पर नुकसान का शिकार हवा, सामान कम पड़ गया और उन्होंने फैसला किया कि आर्जी तौर पर कम मेयार का मवाद इस्तेमाल करके ड्रिल्स पूरी की जाए। मगर उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं अपने नाम और अपने खानदान की इज्जत को खतरे में डाल कर ये करूं? उन्होंने वाज़ेह फैसला किया,
वो मेयार कायम रखेंगे चाहे नुकसान ही क्यों ना। हवास फैसले का फौरी माली नुकसान हुआ मगर मुतासरा गाहकों ने बाद में सच्चाई और मेयार का एतराफ़ किया और वफादार गाहकों की तादाद बढ़ी। शहर के दूसरे ताजिरों ने भी उनकी मिसाल दी और नौजवान कारोबारी हजरात सैयद हसन को बतौर नमूना देखने लगे। उनके इस रवैये ने दिखाया कि मुख्तसर मुद्दत का नुकसान तवील मुद्दत में भरोसा, शोहरत और मुस्तहकम कारोबार में तब्दील हो जाता है। हालात में ईमानदारी का अमली मतलब, ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं बल्कि कारोबारी फैसलों में शफाफियत, मेयार की पाबंदी, औकात कार की पाबंदी, मजदूरों का मुनासिब मुआवजा और सार्फिन से मुनसिफाना सलूक भी है। ये छोटी चीजें मजमूई तौर पर एक ताजिर की शोहरत बनाती हैं। सच्चे ताजिर के मुआशरती फवायद, भरोसा और इस्तेहकाम। जब गाहक जान ले कि एक ताजिर ईमानदार है तो वो बार बार इसी के पास आएंगे। ये बार बार आने वाली खरीदारी कारोबार को पायदार बनाती है। दो, रोजगार के मौके। ईमानदार ताजिर अक्सर अपने कारखाने और दुकानों में बेहतर मुलाजमतें और हालात फराहम करते हैं जो मुआशरती फलाह में इजाफा करते हैं। 3, माशी बरादरी की इज्जत। जब मुताद्दिद ताजिरों में ईमानदारी हो तो पूरे इलाके और शहर की साख मजबूत होती है जो मजीद तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देती है। 4, कानून की पासदारी। शफाफ कारोबार हुकूमत के लिए भी आसान होता है। टैक्स की अदायगी, मेयार की हिफाजत और कानूनी ज़वाबित की पाबंदी नदी से माशी निज़ाम मजबूत रहता है। आम मसाइल और उनके हल, हर कारोबार में चैलेंजेस आते हैं। सच्चा ताजिर उन चैलेंजेस का सामना ईमानदारी के साथ करता है। कीमतों में उतार चढ़ाव। कीमत बढ़ने की सूरत में कस्टमर को पहले से इत्तला देना, मुतबादिल पेश करना, आवक्ती रियायत तय अफराद अकलील अलमुद्दत मुनाफा के मौके, फरेब आ झूठ के जरिए मुनाफा हासिल करना वक्ती तौर पर मुमकिन है मगर तवील मुद्दत में नुकसानदेही। बेहतर है कि मेयार बरकरार रखा जाए और इख्तिराई तरीके अपनाए जा। मुसाबकत, दबाव, सख्त मुकाबला में भी दियानतदारी से काम लिया जाए और गैर इखलाकी हरबे अपनाने से ग्रेज किया जाए। कारोबार हिकमत अमली जहां ईमानदारी के साथ तरक्की मुमकिन हो। 1, शफाफ कीमतों का निज़ाम। कीमतों, डिस्काउंट्स और इजाफी चार्जेस को वाज़े तौर पर दिखाएं। 2, कस्टमर सपोर्ट। फरोख्त के बाद की सर्विस बेहतर रखें, शिकायत को सुनें और फौरन हल करें। 3, मेयार की गारंटी। मसनूआत के मेयार पर खरा उतरने का वादा करें और कमजोरियां फौरी दुरुस्त करें। 4, मुलाजमीन की फलाह। कारकुनों को मुनासिब तनख्वाह, तरबियत और महफूज माहौल दें। ये लंबे अरसे में पैदावारी सलाहियत बढ़ाता है। 5, पायदारी और माहौलियात। माहौल दोस्त इक़दामात कारोबार को मुस्तकबिल के लिए मजबूत बनाते हैं और ब्रांड की छवि बेहतर करते हैं। सच्चे ताजिर का माशी मुज़मरात। ईमानदारी सिर्फ इखलाकी फरीज़ा नहीं बल्कि ये कारोबारी फतह की कुंजी भी है। ईमानदार ताजिर के कारोबार पर दर्ज झैल असरात मुरत्तब होते हैं। कम कस्टमर एक्विजिशन लागत, मौजूदा गाहक नए गाहक लाते हैं। इश्तिहारात और मार्केटिंग पर कम खर्च होता है। कम कानूनी तनाज़ात, कवानीन की पासदारी से कानूनी पेचीदगियां कम होती हैं जिससे वक्त और पैसे बचते हैं। बुलंद मेयार और ब्रांड वैल्यू। मुस्तकिल मेयार से ब्रांड का वक़ार बढ़ता है और कीमत पर मुकाबला कम होता। हिफत मिसालें और तारीखी हवालाजात। तारीख में ऐसे बहुत से ताजिरों के किस्से मिलते हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी की वजह से शोहरत हासिल करवावत। कहानियाँ और लोक अदब में ईमानदार ताजिरों की सिताइश मिलती है। ये कहानियाँ नौजवान ताजिरों को दियानतदारी की तरफ राग़िब करती। आओ नफ्सात पहलू। क्यों ईमानदारी बेहतर काम करती है? इंसानी मुआशरे में भरोसा एक अहम उन्सर है। जब लोग महसूस करते हैं कि ताजिर दयानतदार है तो वो गैर यकीनी की सूरत हाल में भी इस पर इन्हिसार करते। आओ भरोसा की ये कैफियत कारोबारी ताल्लुकात को लंबे अरसे तक कायम रखती है जो कि किसी भी कंपनी या दुकान के लिए सही मानों में कीमती असासा है। खुलासा और नतीजा, सच्चा ताजिर वो है जो अपनी ज़ाती और कारोबारी ज़िंदगी में ईमानदारी, शफाफियत और इंसाफ को अपनाता है। इसकी मिसाल सैयद हसन जैसी हो सकती है जिसने मुख्तसर मुद्दत के नुकसान को कबूल किया मगर तवील मुद्दत में भरोसा, शोहरत और तरक्की हासिल का। ईमानदार सिर्फ इखलाकी खूबी नहीं बल्कि कारोबारी हिकमत अमली है जिससे मुआशरा, मुलाजमीन और खुद ताजिर फ़ायदा उठाते हैं। आखिर में हर ताजिर को चाहिए कि वो अपने रोज़मर्रा फैसलों में सच्चाई को मुकद्दम रखे क्योंकि बिलाखिर सच्चाई ही वो सरमाया है जो किसी भी दौर में कदर खोती नहीं। दावत अमल, अगर आप ताजिर हैं या तिजारत के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं तो आज से अपने कारोबारी अमल में छोटी छोटी ईमानदारी की आदत शामिल करें।
اف قیمتوں کے نوٹس لگائیں، گاہکوں کو درست معلومات دیں اور وعدہ خلافی سے بچیں۔ یہ عادات دن بدن آپ کے کاروبار کو مضبوط اور آپ کی شہرت کو منور کریں گی۔ حوالہ جاتی نوٹ۔ یہ مضمون عمومی اصولوں اور اخلاقی قیود کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کی بنیاد پر ایک تاریخی تحقیق حوالہ جاتی نوٹ مخصوص مذہبی اقتباسات کے ساتھ تفصیلی دستاویز بھی تیار کر دوں گا۔